Welcome, dear students, for the chapter number 3 and session number 3. So, till session number 2, what we have done? We have understood about the graphical method of solving the problems. We have understood there are three options can be there. Either the lines are intersecting, or the lines are parallel, or the lines are coincident. And the conditions also we know very well. Can anybody tell me before starting the session, what are the conditions for intersecting lines? Yes, everybody please. A1 upon A2 should not be equal to B1 upon B2 for the lines which are intersecting. Condition number 1. Second condition, A1 upon A2 is equal to B1. B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. The lines which are coincident have infinite solutions, and these two lines we call the consistent equations. What we call? Consistent. And third one, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. This is the condition for the parallel lines, the lines which are not intersecting and there is no solution, and we call it inconsistent. Okay? So, exercise 3.3, we were doing question number 3, and I asked you to do all the remaining questions by yourself. Try, because when you will yourself try, you will understand it better. Okay, dear students, should I start now? Okay. Again, I am repeating the question number 1. The difference between the two numbers is 26 and the one number is 3 times the other. Make the equation. Let the two numbers are x and y. So x plus y, difference, not addition, difference. X minus y is equal to 26 and x is equal to 3y. Is it okay? Find out the solution. Yes. Put this value of x into this equation. Yes, my dear students, do it please. 3y minus y is equal to 26. 2y is equal to 26. Y is equal to 13. And then x will be 3 into 13 is equal to 39. So we are getting the answer. One is this and other is this. Okay? Very easy. Should I move forward? Okay. Question number 2. The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Find them. Who can do it? What are the supplementary angles? Can anybody tell me? This is a line, and if I make an angle here, one line total value of the angle is 180 degree. If I make
angle alpha and this is the angle beta. Alpha plus beta is equal to 180 degree and this is called supplementary angles. What are complementary angles? Can anybody tell me? Complementary angles are the two angles, the sum have 90 degree. हाँ, कैसा होता है? कैसा होता है बच्चों, बता दो जरा जल्दी जल्दी. ये 90 डिग्री और इसके बीच में कोई एंगल मैंने बनाया. दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसका दोनों का एडिशन 180 होता है. ठीक है, तो लेट द वन एंगल इज एक्स एंड अदर एंगल इज वाई. सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है. हो गई दोनों इक्वेशन, हो गई. करो सोल्व, निकालो आंसर. अब क्या है, अब तो बहुत इजी है. यू कैन पुट हियर x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई. फिर इसको उठा के जरा यहाँ रख दो. तो ये हो जाएगा 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना होता है, 170 और 162. So y will be 162 divided by 2 is equal to 81 degree. Okay, so what will be the x? So x will be 180 minus 81 is equal to कितना हो जाएगा, 99 डिग्री. हो गया. One angle is 99 degree and another angle is 81 degree. This is the answer. Yes. Question number 3. The coach of the cricket team buys 7 bats, 6 balls. In this, later she buys 3 bats and 5 balls. बहुत easy है, बहुत easy है. Let the value of bat is x. Let the value of ball is y. Equation 7x plus 6y is equal to 380. First equation. Second equation हो रही है 3x plus 5y is equal to 1750. करो, अब तो इजी है. करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर सॉल्व कर दीजिए. फाइंड आउट द आंसर. दीज आर द 2 इक्वेशंस. थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, करना जरूर. इजी क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है. यू कैन पुट द वैल्यू. थोड़ा एक बार मैं करके बता दूं हल्का सा. x विल भी हो जाएगा 750 माइनस 5y अपॉन 3 और इसको उठा के यहां रख दीजिएगा. थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है बट यू डू इट. फाइंड आउट द आंसर. इफ द आंसर इज रॉन्ग अगेन ट्राई इट. रीचेक द कैलकुलेशन. Question number 4. The taxi charges in a city consist a fixed charge together with the charge of the distance covered. एक टैक्सी है ना सिटी के अंदर, एक तो लेता है फिक्स चार्ज. आप बैठ के उतर जाओ तो भी फिक्स चार्ज, 1 किलोमीटर जाओ तो भी इतना, फिर पर किलोमीटर चार्ज. let the fixed charge is x, let the running charge is y. चलो आगे. अब फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर उसको 105 लगा और 15 किलोमीटर के लिए 155 लगा. बताइए बनाइए वो इक्वेशंस. ये आ जाएगा x प्लस 10y इज इक्वल टू
105 and second equation x plus 15y is equal to 155. इस चैप्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी जिसमें अपने को इक्वेशन फॉर्मेशन करनी है। अब निकालो x और y की वैल्यू, अब आ जाएगा। दिस इज कंडीशन नंबर 1, दिस इज कंडीशन नंबर 2। हाँ कर लोगे ना। x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, फिर यहाँ रख लो इसको, है इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो ये हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 105 माइनस 155, तो ये बन जाएगा माइनस का 50, तो माइनस का 5 दोनों प्लस हो गया, y विल बी 10। y विल बी 10। x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ रख दीजिए x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, तो x विल बी हो जाएगा 105 माइनस 100 5 रुपीज़। तो फिक्स चार्जेस विल बी x विल बी 5 रुपीज़, x will be 5 rupees and y will be 10 rupees. मिला क्या आंसर? इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, मैं जो करवा रहा हूं क्वेश्चन, उसके पहले आप एक टेक्निक, तो मैंने आपको कहा था सारे क्वेश्चन ट्राई करना, लेकिन अगर नहीं किए तो एक काम और कर सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन पॉज द वीडियो एंड डू द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन चेक वेदर यू हैव डन राइट और रॉन्ग। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. अच्छा, if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 and 6. करोगे? Let the fraction is x upon y. तो x plus 2 और y plus 2 इक्वल टू होना चाहिए 9 by 11, और x plus 3 और y by 3 इक्वल टू होना चाहिए 5 by 6। ये हमारे पास दो कंडीशन आई, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। सबसे पहला काम क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। करो, चलो थोड़ा बहुत मैं भी करता हूँ, आप भी करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 11 को मल्टीप्लाई कर दूँ x प्लस 2 से, और 9 को मल्टीप्लाई कर दूँ y प्लस 2 से, ये हो जाएगा 11, ऐड कर रहा हूँ मैं, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। सही है क्या? गलती तो नहीं किया? तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी 11x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे करना है। इसको भी कर लोगे, निकाल लोगे x और y की वैल्यू, फिर फ्रैक्शन आ जाएगा x अपॉन y। चलो आगे। Yes, question number 6. 5 years hence, the age of the Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob age was 7 times that of his son. कोई कर सकता है बिना मेरे सपोर्ट के? Let the age of the Jacob is x. Let the age of his son is y. 5 साल बाद उसकी जेकब की जो एज है वो उसके बच्चे की एज से 3 टाइम हो जाएगी। तो x प्लस 5 है,
x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन है 5 साल पहले, यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 7। करो सॉल्व, कर दो सॉल्व, करिए बच्चों। ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू उठाई, इक्वेशन नंबर 2 में रखी, लिखना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इन इक्वेशन नंबर 2 ये आ गया y इज इक्वल टू 10, y कौन है उसका सन, इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो जेकब की एज आ गई 40। ठीक है, हाँ हो गई एक्सरसाइज फिनिश। तो एक बार वापस से वीडियो पॉज करो, सारे क्वेश्चंस को दोबारा से ट्राई करो और सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली इन प्रॉपर लैंग्वेज, जैसे आप एग्जाम में लिखते हो वैसे एक आपकी फेयर कॉपी में लिख डालना है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस माय वर्क इज डन। Yes students, now we are studying the second method, second algebraic method for solving the equations, and this method is called elimination method. Eliminate समझते हो ना, एक को खत्म कर देना, हटा देना। हमारे पास कोई इक्वेशन है ये, उसमें से करना कुछ भी नहीं है। पहले वाले में तो अपन ने सब्स्टिट्यूट किया था, अभी थोड़ा नई टेक्निक है, देखो बहुत अच्छी और इजी टेक्निक है, करें। मैं इधर इसको करता हूं, आप भी अपना कॉपी खोल लीजिए। यस, ओपन योर बुक। एग्जाम्पल नंबर 11 आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। अच्छा, अभी इक्वेशन भी तो बनाना सीखना है। अच्छा 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 अच्छा, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons is 9/7 and ratio of their expenditure is this, और दोनों मिलके बचाते हैं 2000 रुपया। जो पहले वाला पर्सन है उसकी इनकम 9x मान लेते हैं, दूसरे वाले की 7x मान लेते हैं, इसका पहले वाले का खर्चा 4y मान लेते हैं, दूसरे का खर्चा 3y मान लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या हो गई, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, दूसरे की हो गई 7x माइनस 3y, उसका खर्चा 3y है ना। अब अपने पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। ठीक है, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है कि इनमें से किसी को, दोनों में से ऐसा कुछ करो कि एक चीज गायब हो जाए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा 12, और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी बन जाएगा 12, बन जाएगा। करूं, ठीक है करता हूं। तो ये हो जाएगा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, और ये मेरा हो गया 28x माइनस 12y इज इक्वल टू हो गया 8000। ठीक है, अब क्या करूं, मैं दोनों इक्वेशन को जरा सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो y मेरा उड़ जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा।
ये माइनस किया, ये प्लस किया, ये माइनस। जब भी आप घटाते हो, सबट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज करते हो, कर लिया, ये हो गया, कट गया। क्या बचा? माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2000, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 2000। आया क्या आंसर? यही है ना? बुक में देख लो जरा, सिंपल है ना एलिमिनेशन मेथड। अब तो मजा आ गया। फिर x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया दिस, इसके बाद मैंने इसको घटाया, x इक्वल टू। इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से किया, अपने अलग तरीके से किया। अपन ने कैसे किया? ऐसे किया, ऐसे रख के उसको डायरेक्ट घटा दिया। इन्होंने कैसे किया? ऐसे किया। कौन सा अच्छा लगा? अपना वाला अच्छा है ना? चलिए साहब, एग्जाम्पल नंबर आ जाइए 12 पर। एग्जाम्पल नंबर 12 पे आ जाइए। अपने मन से करेंगे, अपनी स्टाइल से करेंगे आज। बहुत इजी तरीका है, आ जाओ करते हैं। क्या क्वेश्चन? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। सही है? किसको इक्वल करे बताओ? किसको इक्वल करे? तो दोनों इक्वल हो रही है। इस वाले को अपन क्या करें? मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। अगर घटाएंगे तो दोनों उड़ रहा है, तो कुछ भी नहीं बच रहा। 0 इज इक्वल टू माइनस 9 आ रहा है। 0 इज इक्वल टू माइनस 9 आ रहा है। ये तो मामला अलग आ गया। इसका मतलब क्या है? ऐसा आएगा तो क्या मतलब है? इसका मतलब है देयर इज नो सॉल्यूशन। कौन सी वाली? इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइन है ये लाइन जो है ना, पैरेलल लाइन है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया। चलिए एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। चलो आ जाओ। The sum of the 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is this. Okay, if the digit of the number differ by this, find the number and how many such number are there. कुछ समझ में आ रहा है देख के? पहले कभी किया ऐसा क्वेश्चन? चलो आओ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। 13। इन्होंने दिया है दो नंबर ऐसे हैं। पहली बात, दो नंबर मान लिया ना, x और y। y जो है वो तो यूनिट प्लेस पे, x क्या है? टेंस प्लेस पे। अगर उसका वैल्यूएशन करेंगे तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बताओ? लिखोगे ना 10x प्लस y। सही है। और जब उल्टा कर देना है तो हो जाएगा 10y प्लस x। दोनों को जोड़ देना है तो 66। कंडीशन नंबर 1। वापस से समझोगे। 2 डिजिट नंबर x एंड y। x जो है वो 10 प्लेस पे, तो पहला का वैल्यू हो गया 10x प्लस y। ठीक है, उसमें जोड़ना रिवर्स करके, तो y आ गया 10 प्लेस पर और दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 66। ये मेरा कंडीशन है। सॉल्व किया तो ये 11 मेरा बाहर आ जाएगा,
तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 11 कॉमन आ रहा है। पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड कह रहा है दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 है। सेकंड इक्वेशन भी आ गई x माइनस 2। बस एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ये माइनस ये प्लस देश, इससे ये कट गया। क्या किया है? इसमें ये क्या, तो ये कट गया। 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 और दोनों का डिफरेंस 2 है, तो x इज इक्वल, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4। नंबर हमारे पास आ रहा है 42। 42 भी हो सकता है, 24 भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। 42 भी आ सकता है और दोनों आ सकते हैं। There are two answers. Okay. Should we start exercise 3.4? So what is the condition before starting the exercise? Pause the video and do all the questions. Try all the questions by yourself. Question number 1. Solve the following equations by elimination method and substitute. दोनों से करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 इक्वेशंस। एलिमिनेशन मेथड से भी करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। करिए। अभी मैं एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन तो अपने को आता है, तो आप सब्स्टिट्यूशन तो अपने आप करना। एलिमिनेशन मेथड मैं कर रहा हूं। पहला कंडीशन आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दिस क्या लगाओ बताओ बच्चों, क्या करें बताओ? इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा कि नहीं होगा? कर दिया, ये कर दिया, तो ये क्या बन गया? ऊपर वाला फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये बन गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब अपने को क्या करना है? सबट्रैक्ट कर दिया तो ये अपोजिट हो गया, ये बन गया माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 6, y इज इक्वल टू 6/5। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू दिस, एलसीएम लिया एंड x इज इक्वल टू मेरे पास आया 19/5। x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। जरा देखोगे, एक बार देख लीजिए। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, क्या आया? करो। आ गया? चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करते हैं। कुछ ज़्यादा इजी लग रहा है तो मेरे को। इजी है भैया, ये तो मुझे इजी लग रहा है क्योंकि इसमें तो सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब घटाना नहीं है, घटाना इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी अपने को डिफरेंस मिल रहा है, जोड़ देना है। हाँ, सभी घटाने पे मत लगना, सबट्रैक्ट मत कर देना, एडिशन भी कर लेना कभी कभी। यहां मैंने इसको ऐड किया तो ये कट गया, ये बन गया 7x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 2। देखो इसीलिए क्वेश्चन में करने को बोलता हूं, क्योंकि एक बार समझ में आ गया कर लेंगे नहीं। और ये भी बोलता हूं तुम करो, अगर आप करते तो आपको तो मालूम चलता, सर ने तो सबट्रैक्ट करने को बोला था, ये सर एडिशन हो रहा है। ये x की वैल्यू मैंने यहां रख दी, इसमें ये आ गया y इक्वल टू 1। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ये वाला। चलो बहुत अच्छा है,
ये भी इजी लग रहा है। ये 3x है, ये 9x है। पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। कितना इजी है, एलिमिनेशन मेथड कितना इजी बताओ। ये मैंने पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ लाया, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये कट गया, क्या बचा, प्लस का 13y इक्वल टू माइनस का 5, y इज इक्वल टू आया -5/13। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। करो करो कैलकुलेशन करिए, सब ये एलसीएम लेना सीखिए, एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 9/13। y तो था अपने पास -5/13 और x की वैल्यू आई 9/13। देखना है कि वापस, जरूरत तो नहीं है? जरूरत है क्या, देख लो। So the x is equal to 9/13 और y is equal to -5/13। चलो साहब, क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। ये करते हैं, इसको करोगे अपने आप, पहले सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम वेलसीएम लेना पड़ेगा। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो जरा जल्दी जल्दी। ये पहली इक्वेशन 6 को एलसीएम ले लिया, ये हो गया, ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले को भी एलसीएम ले लिया, ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है, बस दोनों, इसमें 3x आ रहा है, यहां भी आ रहा, दोनों को घटा दो, हो जाएगा। केवल सिंप्लीफाई करने तक थोड़ी कैलकुलेशन का खेल है। इसलिए क्वेश्चन खुद से ट्राई करना चाहिए बच्चों। ये मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट गया, प्लस का 5 है इक्वल टू माइनस का 5। ये माइनस प्लस का बड़ा चक्कर है, बच्चे लोग काफी गलती करते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना बच्चों। जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो भी प्रैक्टिस करिए, बाकी सबको करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम 2 times 3 times डू द क्वेश्चंस। y इज इक्वल टू -3, इसका वैल्यू रखा, यू विल गेट द x इज इक्वल टू 2, सो द आंसर विल बी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आ जाइए जरा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर। फिर आ गए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। इक्वेशन फॉर्मेशन बहुत सारे आएंगे अभी तो। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1. Okay, it becomes 1/2 if we add 1 to the denominator. What will be the fraction? किसी को समझ में आ गई लैंग्वेज? समझ में भी आ जानी चाहिए। कह रहा है कोई फ्रैक्शन है x/y, ठीक है, उसमें न्यूमिनेटर में +1 कर दो, डिनोमिनेटर में ये कर दो, एक तो ये आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि इफ वी ऐड, डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 1/2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इजी? अब तो इजी लगी। शुरू में आपको लगा होगा ये तो टफ है, टफ नहीं है ना, इजी है, करें सॉल्व। चलो, ये मेरी कंडीशन नंबर 1, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें आ गया x - y इज इक्वल टू -2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड,
ये y प्लस 1 ये आ गया, तो ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 2। दिख रहा है साफ? ये माइनस वाई है, ये माइनस वाई है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये कर लिया सब्ट्रैक्ट, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये कट गया, क्या आ गया बच्चों जल्दी बोलो? माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 3x बराबर आ गया 3। इस x की वैल्यू को यहां रख देता हूं, क्या आएगा? 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 वाई इज इक्वल टू 5। आंसर आ रहा है 3/5 इज माई फ्रैक्शन। अप्लाई भी कर लो, 3 में 1 जोड़ो, 5 में माइनस करो, 1 आ रहा है कि? हाँ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? चेक करो। 3 प्लस 1 और 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, आ रहा है ना? अच्छा क्वेश्चन है, कर लो। ओहो, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 2। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. ओके, नूरी का एज मान लीजिए x, और ये जो सोनू है ये y है। 5 years ago यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स नूरी का एज का। इक्वेशन नंबर 1। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस। ओहो, तो दूसरी इक्वेशन हो रहा है x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x y प्लस 10। ठीक है, सही है? कर दो सॉल्व, निकाल दो आंसर। ये आ गई पहली इक्वेशन, इसको मैंने सॉल्व किया, ये मेरी कंडीशन नंबर 1 आ गई। दूसरी वाली को किया, ये मेरी कंडीशन नंबर 2 आ गई। करें एलिमिनेशन मेथड से? करें। इसको लिख देता हूं मैं यहां पे। तो ये ऊपर तो आ रहा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। हाँ, दूसरा आ रहा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। घटा दें, सब्ट्रैक्ट, ये कट गया, क्या आ गया? माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 20, तो y इज इक्वल टू आ गया 20। इस y इज इक्वल टू 20 को यहाँ रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों? x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू आ रहा 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50। जो ये नूरी है उसकी एज है 50, नूरी की एज है 50 ईयर्स और सोनू की एज है 20 ईयर्स। जरा देखो अपनी जो कंडीशन है मिल रही है कि नहीं मिल रही है? क्या थी कंडीशन? 5 years ago ये थी 45 और ये थी 15। ओके, 3 टाइम्स, बिल्कुल सही है। यू कैन चेक द आंसर इन एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, इक्वेशन सही है, सॉल्व कर ली, x भी आ गया, y भी आ गया, चेक भी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन करते जाओ, थको मत। मोर एंड मोर क्वेश्चंस। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 digit नंबर, वही वाला। Sum of the digits of the 2 digit number is 9, and also 9 times the number, also 9 times this number is twice the number obtained by reverse। अलग ही क्वेश्चन है। Sum of the 2 digit number, sum यानी x और y दो है, तो पहली कंडीशन है x प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम, बड़ा जोरदार है,
बड़ा जोरदार है भाई। ये मेरा नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस 10y प्लस एक्स। आया कुछ समझ में? आया कुछ समझ में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। करें? सबसे पहली कंडीशन तो दे दी, 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसका दोनों का जो डिजिट्स का जो एडिशन है वो 9 आ रहा है। अब सेकंड वाली कंडीशन कह रहा है कि जो डिजिट है ना उसको अपन लिखते हैं ना 10x प्लस वाई, ऐसे लिखते हैं ना, उसका करो 9 टाइम्स। वो कह रहा है वो ट्वाइस रहेगा, यदि उल्टा कर दोगे तो ये आ गया। ये मेरी सेकंड कंडीशन आई। इस सेकंड कंडीशन को जरा सॉल्व कर लेंगे बच्चों, और ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। तो पहली तो आ गई दिस, दूसरी आ गई दिस। अब करोगे सॉल्व, ये मैंने काट दी। 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 8। मेरे पास आंसर आ रहा है 18। क्या आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, सभी देख लीजिए। ये कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2, ये मेरी इक्वेशन नंबर दिस। ये इन दोनों को किया सॉल्व, वो x इज इक्वल टू 1 आया और y इज इक्वल टू 8 आया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं नेक्स्ट क्लास में लेने वाला हूं, और नेक्स्ट क्लास में लेकर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ाने वाला हूं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एग्जाम्पल को करने के बाद मैं एक्सरसाइज 3.5 भी करने वाला हूं। लेकिन आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो जितने क्वेश्चन किए हैं उनका पक्का प्रैक्टिस करके you will do all the questions in your fair copy, and I am giving you 2 questions, 4th and 5th, to try yourself. सभी बच्चे ट्राई करना, सभी को आना चाहिए। Okay, so we will meet in the next class. Okay.